Hi viewers, I would like to tell you that once again that if you are studying, it means that you have not to stay that in a single area, that you have to depart that in different area, that in quest of job. And whenever that you go even out of your state, then in the situations that you have to face this English, and you think that, oh God, I couldn't learn English and I have to talk that here in English because all the people are talking in English, but I don't know the ABCD of English. In the situations that you face, the lot of hurdles, that if you are willing to learn English, then here is such opportunity that I am giving you that a well direction by which that you can learn English and you can use your English means all the sectors where that you have a job and just you are going to join a job, and you always think and always that you have a doubt that if I will go to that state, the English that is spoken there and I don't know that anything about that, and in that situations that you face a lot of problems, nobody is there to cooperate you, and just you listen, you keep watching that each other faces, but there is no any word I think within you to speak with them. You that get such opportunity that here, that if you are to go outside, anywhere out of state, out of stations, then you just join here the offline classes and you gather the lot of knowledge that where that you can use this all the words and this all the sentences that in out of your station, out of your states, and you will get such an opportunity there, and you can talk to anybody that fluently, and you can prove yourself that I am from the Hindi medium or I am from the CBSE, but I am at home in English, I can talk to anybody that fluently and it will be good that in a good English communications. That if you need this, then please I invite you, you join here offline classes and just get these knowledges from here, and just you can use them in all the education sector or in job sector. Thank you a lot, Ms. Barbe. हाय दोस्तों, आपका वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप YouTube के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वीडियो को आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, या तो उनको बाहर में जॉब लग जाती है, और जब वो बाहर जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, तो उनको अंग्रेजी का जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कल के पेपर में मैंने देखा कि अब हमारे झारखंड में भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो है खुलने जा रहे हैं, और स्पोकन इंग्लिश की जो है पढ़ाई दी जाएगी विद्यार्थियों को। और अंग्रेजी हमारी झारखंड सरकार ने भी इसको सोचा है कि अंग्रेजी के बिना जो है हमारा झारखंड के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो अधूरे हैं, और इस अधूरेपन के कारण जो है विद्यार्थी यहाँ सीख नहीं पाते हैं अंग्रेजी। लेकिन अंत में जो है सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा है कि अब यहाँ के स्कूल में भी जो है अंग्रेजी की शिक्षा दी जाएगी, यानी कि अंग्रेजी की भाषा पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी का ज्ञान दिया जाएगा कि वो बच्चे जो है अंग्रेजी कैसे बोलेंगे। क्योंकि अंग्रेजी का इतना प्रभाव है कि जब CBSE स्कूल के विद्यार्थी कहीं सामने आते हैं और सरकारी स्कूल के विद्यार्थी वहाँ टकराते हैं, तो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी वहाँ चुप रह जाते हैं और CBSE स्कूल के विद्यार्थी वहाँ फास्ट बोल करके पार हो जाते हैं। तो सरकार ने अंत में सोचा कि हमारे स्कूल में भी अंग्रेजी की पढ़ाई की जानी चाहिए। कल की ही बात है, और आप इस दैनिक भास्कर में आप इसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ भी सरकार जो है अपॉर्चुनिटी देने जा रही है। अगर जो अंग्रेजी आप ठीक से सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको जॉब का जो और ज़्यादा मौका मिलने जा रहा है। ये आपके लिए जो सुनहरा मौका है। आप बाहर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, या आपकी वहाँ ट्रांसफ़र हो गई है, तो वहाँ जाने से पहले आप सोचते हैं कि वहाँ के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, मैं वहाँ कैसे हिंदी बोलूँ, हमारी भाषा को कैसे समझेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर देश में हर राज्य में जो है अंग्रेजी बोला जाता है, तो आपको इसकी जानकारी जो है अति आवश्यक है। तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, या बाहर कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, तो आपको कम से कम कुछ महीनों की ट्रेनिंग अवश्य लेनी चाहिए। और हमारे बालेडी में जो स्पोकन क्लास बहुत दिनों से ये चल रहा है, आप यहाँ आकर के ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास। और जैसी आपकी स्थिति है, आप ये ना सोचें कि हम अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर हैं, तो जैसी आपकी कमज़ोरी है उस प्रकार आपको जो यहाँ शिक्षा दी जाती है, वैसे आपको कोच किया जाता है, आपको वैसे प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप अपने अंग्रेजी को जो कैसे बूम करें, कैसे इम्प्रूव करें। तो ये सारे हमारे यहाँ सुविधा है। जैसे विद्यार्थी होते हैं, मैं उनको उस प्रकार का बैच देता हूँ, उस बैच के अनुसार जो है ग्रुप डिस्कशन लोग करते हैं, आपस में जो बातचीत करते हैं, और बहुत सारी अपनी समस्याओं को रखते हैं, और इंडिविजुअल जो है वहाँ
आपको बुलाया जाता है कि आप स्टेज पर आएँ, मंच पर आएँ और आप अपने शब्दों को रखें, किसी प्रसंग के ऊपर, किसी टॉपिक्स के ऊपर आपको उस पर बोलना है, तो आप अपने आप को पहचानते हैं, आप अपने आप को भांपते हैं कि मैं कितना पानी में हूँ और मुझे कितने जानने की आवश्यकता है। आप यहाँ आकर के जो निडर होंगे, आप शर्ममुक्त होंगे और आपके पास वो सारी जानकारी होगी जो आप बाहर कहीं प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेजी के कारण आपको कभी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, लेकिन अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके नज़दीकी बालिनी क्षेत्र में इमोर्टल स्पोकन इंग्लिश जो है बहुत दिनों से क्लास यहाँ पे चल रही है, तो आप यहाँ करके जो ऑफलाइन क्लास आप कर सकते हैं। तो आप आइए और यहाँ अंग्रेजी क्लास ज्वाइन कीजिए। तो मेरे यहाँ क्लास का जो समय होता है सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक यहाँ क्लास होती है, और शाम के 3 बजे से लेकर के जो है 8 बजे तक मेरे यहाँ क्लास होती है। तो अगर आपको किसी भी समय ऐसा समय मिल जाता है सीखने के लिए, तो आप आकर के जो है यहाँ बैठ सकते हैं, आप यहाँ क्लास अटेंड कर सकते हैं और उन सभी चीज़ों को आप सीख सकते हैं जो आप बहुत दिनों से अपने मन में बैठाए हुए हैं, लेकिन आप किसी के समक्ष ना बोल पाते हैं, ना किसी के पास आप अपने बातों को रख पाते हैं। तो आप बेफिक्र होकर के, निडर होकर के हमारे कोचिंग सेंटर पे आइए और यहाँ ज्वाइन कीजिए और अंग्रेजी बड़ी आसान तरीके से आप यहाँ सीखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। वो भाव नहीं होता, वो एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार आपके चेहरे में वो भाव होना चाहिए, आपके आंखों में वो भाव होना चाहिए, हाथ में आपका भाव होना चाहिए, पूरी बॉडी में आपका जो भाव होना चाहिए, इसको हम लोग बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तब आप अंग्रेजी अच्छी तरह से किसी के सामने पेश कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, और मैं आपको एक टिप्स बताना चाहता हूं, किसी से बात कर रहे होते हैं और बात करने के दौरान आप जो सेंटेंस यूज करना चाहते हैं, वर्ड यूज करना चाहते हैं, अगर आप भूल रहे हैं तो वहां आप एक्सप्रेशन से काम कर सकते हैं। क्या करेंगे? आप कहेंगे एक्चुअली दैट। इस तरह से आप जब तक याद ना आ जाए तब तक आप अपने हाथ के एक्सप्रेशन से उस व्यक्ति को लटका के वहीं रखेंगे जब तक आपको याद ना आ जाए। ये एक्चुअली जो है आपको बहुत देर तक मौका देगा, और जो सुनने वाला व्यक्ति आपके सामने है उसको भी लगेगा कि लड़की जान रही है, अंग्रेजी जानती है। लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है कि मैं उस चीज को याद कर रही हूं जो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन एक्चुअली ने आपको बचा लिया। एक्चुअली यू नो दैट, एक्चुअली यू नो। इस तरह का एक्सप्रेशन आने से वो व्यक्ति इंतजार करेगा और चुपचाप रहेंगे। ऐसे ऐसे मुंह घुमाएंगे। वो व्यक्ति इंतजार नहीं करेगा। वो व्यक्ति जान जाएगा कि नहीं, इसको मालूम नहीं है। तो फिर आप अंग्रेजी जानते हुए भी नहीं जानते हैं, आपका मेहनत बेकार चला गया। बाद में आपको याद आता है कि अरे ये सेंटेंस तो हमको ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने वहाँ नहीं बोला। क्योंकि देखिए, ये इसको कहते हैं स्पोकन इंग्लिश, मौखिक अंग्रेजी। लोग आपकी बात को आपके सामने सुनेंगे, इंतजार नहीं किया जाता है उसमें। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि वेयर हैड यू गॉन, तो आपको तुरंत हमको जवाब देना है। अब ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, मुंडी इधर उधर नहीं घुमाना है, तुरंत जवाब देना है। क्योंकि मैं उस प्रश्न को कुछ अभिलाषा के साथ किया कि मुझे अंग्रेजी में जवाब मिलेगा।
तुरंत आप बोलेंगे आई हैड गॉन टू मार्केट सर, मुझे जवाब मिल गया। तो जब कभी आप इस तरह कहीं फंस जाएं बोलते बोलते, तो ये एक्चुअली एक ऐसा हथियार है, आपको बचा लेगा। तो ये तरीका आप अपनाएंगे, हाथ का एक्सप्रेशन जरूर आप यूज करेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बोलते हैं कि मुझे लज्जा आती है, मैं ऐसे कैसे करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, that if you want to be a good speaker, you have to follow these expressions, then you will be able to speak English fluently. Otherwise just it will be a dream within your life. It's very necessary. ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सपना का सपना बना रह जाएगा, मन का भाव मन में ही रह जाएगा। तो जैसा मैं कहता हूँ आपको वैसा ही फॉलो करना है एक अच्छे स्पीकर बनने के लिए। तो चलिए आप जानते हैं कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि ग्रामेटिकल और एक नॉन ग्रामेटिकल इंग्लिश होता है। तो जब आप एक विद्यार्थी हैं तो आप थोड़ा सा ग्रामेटिकल लेके चलेंगे तो आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि अब आपको आगे की भी पढ़ाई करनी है और भविष्य में किसी को बतानी भी है। अब मान लीजिए आपने नॉन ग्रामेटिकल अंग्रेजी सीख ली और आपके भाई ने, आपकी बहन ने आपको घर में कुछ पूछा, तो आपने जो गलत सीखा तो आप तो गलत ही बताएंगे उसको। आप कहेंगे ना ऐसा ही होता है। अब वो भी सोचेगा, चाहे सोचेगी कि भाई चलो मेरी बहन जो है अंग्रेजी में बात करती है, अंग्रेजी जानती है, तो हमको तो सही बताई होगी। लेकिन यहां भी गलत सीखे और घर में जाके भी गलत किसी को बता दिए। और जिसकी उम्र अब वैसे हो गई है जो पढ़ाई की उम्र में नहीं है, वैसे लोगों को नॉन ग्रामेटिकल फॉलो करना चाहिए। कि ग्रामेटिकल से कोई मतलब नहीं, हमको अंग्रेजी में बात करने से मतलब है, मुझे ऑफिशियली कहीं पर यूज कर लेना है, तो आप आराम से वहां इस तरीका को अपना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है बात करते हैं, सीखते हैं कि ये अंग्रेजी हम कैसे आसान बनाएंगे, कैसे हम इसको सुलभ बनाएंगे। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश एंड मैक इजी। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी को हम लोग इम्प्रूव कैसे करें। अंग्रेजी का नाम सुन के बहुत कोई घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसा चीज़ बताऊंगा कि आपके अंग्रेजी को आप कैसे सुलभ बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं अंग्रेजी सीखूं, मैं अंग्रेजी बोलूं। जहां आप कोई भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हों, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या आप नौकरी कहीं कर रहे हैं, लेकिन नौकरी करने वाले लोगों को भी ये इच्छा होती है कि हम भी काश अंग्रेजी जानते, हम भी काश अंग्रेजी में बातें करते। क्योंकि नौकरी करने वाले लोगों को अलग अलग स्थान पर जाना होता है और उनको जो है अपने बड़े अधिकारी से मिलना भी होता है। लेकिन जब वहाँ कोई अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं तो उस समय उनको बड़ा गिल्टी फील होता है, दोषी महसूस होता है कि मैंने अपने समय में इसकी पढ़ाई नहीं की, मैंने अंग्रेजी को सीखा नहीं, मैंने इसके महत्व को नहीं जाना। और आज उनको इसकी आवश्यकता होती है कि हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए, हमें अंग्रेजी जानना चाहिए। तो यहाँ बहुत से ऐसे विद्यार्थी ऐसे भी आए हैं जो कि रेलवे एम्प्लॉय हैं, जो BSL एम्प्लॉय हैं, जो बैंक में काम कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को भी मैंने शिक्षा दिया है, मैंने पढ़ाया है, और उन्होंने अपने बात को प्रकट किया, अपने समस्या को प्रकट किया है कि आज मुझे अंग्रेजी की बहुत आवश्यकता पड़ी और मैं अंग्रेजी सीखने यहाँ आ गया। क्योंकि जहाँ जब कोई मेरे सीनियर बात करते हैं और मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास डिग्री है, लेकिन मेरे पास चंद अंग्रेजी शब्द नहीं है, और इसलिए मुझे अपना मुंह जो है वहाँ बंद रखना होता है। चाहते हुए भी मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ और मैं चुपचाप उनके सारे बातों को सुनता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये चीज़ खा जाता है दीमक की तरह कि मैंने अंग्रेजी के महत्व को क्यों नहीं जाना,
मैंने अंग्रेजी सीखा क्यों नहीं। जब मैट्रिक तक विद्यार्थी होते हैं तो उनको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती है कि मुझे अंग्रेजी का सामना करना होगा। लेकिन जैसे ही आप मैट्रिक पास करते हैं, चाहे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, या तो आप पॉलिटेक्निक करते हैं, या तो आप आईटीआई करते हैं, या आप और भी कोई ऐसे पढ़ाई करते हैं, तो उन सारे किताबों में आपको अंग्रेजी ही मिलती है, अंग्रेजी में ही लिखा हुआ मिलता है आपको। और उस समय आप सोचते हैं कि मुझे साइंस नहीं लेना चाहिए, मुझे कॉमर्स नहीं लेना चाहिए, मुझे आर्ट्स नहीं लेना चाहिए, मुझे आईटीआई नहीं करनी चाहिए, मुझे पॉलिटेक्निक नहीं करनी चाहिए। तो फिर आप क्या पढ़ेंगे? सारे चीज़ों में अंग्रेजी व्याप्त है, और चारों ओर जहाँ भी देखें वहाँ अंग्रेजी का ही साम्राज्य है। आप कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको अंग्रेजी में ही पढ़ना होता है। आप मोबाइल घर में चला रहे होते हैं तो आप अधिकतर जो है अंग्रेजी में ही उसको टाइप करते हैं, अंग्रेजी में ही जो है उसको आप यूज़ करते हैं। तो यानी कि जहाँ भी आप देखें आपको अंग्रेजी की आवश्यकता होती है, और अंग्रेजी सीखने की भी लालसा होती है, उत्कट लालसा होती है मन में कि हम अंग्रेजी सीखें कैसे। लेकिन यहाँ बात इस सीमा पर पहुँचती है कि हम अंग्रेजी को सुलभ कैसे बनाएं, अंग्रेजी को आसान कैसे बनाएं, जिससे अंग्रेजी मेरे पास हो और हम सर्वदा अंग्रेजी शब्द यूज करें, अंग्रेजी में बात करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ों को बताने जा रहा हूँ, आप अमल करेंगे, उस पर आप ध्यान देंगे, आप उस पर फोकस करेंगे कि हम अंग्रेजी कैसे आसान बना सकते हैं। Actually, all scholars, I would like to tell you that English that is in all sectors, and we need English all the places, but till matric, till secondary, that we never focus on English subject. Because you think that as I have passed out the secondary, that all the life that it will pass like this. But whenever you join college, polytechnic, your ITI, your medical field, these all the fields are dependent on English. If you have good command in English, that you will be capable to success that in your future. Otherwise, the English always disturb you that while reading, and made you decide that no, I should not take it, I should not read this. But what will you leave? Which subject will you drop? In all the subjects, that there is the kingdom of English. And it is very compulsory, it is very necessary to know English that in your life, and it will work forever. Today there are many jobs in Wipro field, in call center, in schools. Then if you have good command in English, that school invite you to teach students there. If you have good command in English, that you get a job that in any computer center. There are a lot of things that where is the kingdom of English, and you should know about it. Today you are learning English, the entire life that you can use that all the places. But when students, they listen the name of English, they scare, they perplex, that how can I know English? How can I speak English? But you have not to take that the tension within you. You can make your English easy. That if you have such tips, then you can make it easy and you can learn English very easily. That's why it is very necessary at any cost that you have to learn English. Today you are learning English, it means you are inviting your bright future forward. Otherwise, that as it is disturbing you, that it will keep disturbing their all the lives. That's why that what I am going to teach you, what I am going to tell you, the some tips
that you have to follow those things and you can improve your English very well and you can speak there fluently. Sometimes we talk and people says that grammatical is not necessary to learn English. Yeah, who says that he is right? We can speak English that without grammatical. You have not to follow that anything of grammatical. But you are students, you are in learning periods. That's why you should have those all things by which that you can learn the correct English. And in future, suppose you would like to teach someone, then you can also direct him that how can you speak English. And if you learn that English wrong, that in the beginning, it means all the life that you will learn the wrong and you will teach someone wrong. That's why it is compulsory to know English that with grammaticals. But it depends on you that you want to follow it or you don't want to follow it. But according to my view, according to my notion, that how many students are studying that in this life, they should go that with grammaticals. Otherwise, they will have to face the lot of hurdles in their career, in their learning career, in the different sectors, when they go to find their job, when they go to take their further educations. तो चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा टिप्स बताने जा रहा हूँ जो आप उसको फॉलो करेंगे, उस पर आप ध्यान लगाएंगे और अंग्रेजी को आप सुलभ बनाएंगे, आसान बनाएंगे। ठीक है।